دلی کی تہاڑ جیل سے فرار ہونے والے ان سربکف مجاہدوں کی لہو رنگ داستان، جنہوں نے کشمیر کی آزادی کے لیے دشمن کی سرزمین خصوصاً دلی میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کو قدم قدم پر شکست فاش دیتے ہوئے دشمن پر کاری ضربیں لگائیں۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ ٹریگر دب گیا اور گولی مادوری کے سینے میں ٹھیک دل کے مقام پر پیوست ہو گئی۔ پستول چونکہ اس کے جسم کے نیچے دبا ہوا تھا، اس لیے فائر کی آواز بھی دب کر رہ گئی تھی۔ طارق نے اگرچہ فوراً ہی پولیس آفیسر پر چھلانگ لگائی تھی، لیکن اس سے دیر ہو چکی تھی۔ اس نے ایک گھٹنا پولیس آفیسر کے کندھے پر رکھ دیا اور اپنا ایک بازو اس کے گلے میں ڈال کر دبانے لگا۔ پولیس آفیسر کا سانس گھٹنے لگا۔ پستول پر اس کی گرفت ڈھیلی ہو گئی۔ طارق اس کی گردن پر دباؤ بڑھاتا رہا۔ پھر اس نے اپنے بازو کو ایک زوردار جھٹکا دیا۔ کڑک کی ہلکی سی آواز ابھری۔ پولیس آفیسر کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ اس کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکل گئی، لیکن طارق نے جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ پولیس آفیسر کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ وہ ختم ہو چکا تھا۔ طارق اس کے اوپر سے اٹھ گیا اور پھر اس کی لاش گھسیٹ کر سوئمنگ پول میں پھینک دی۔ پھر اس نے مادوری کو سیدھا کیا۔ اس کے سینے سے بہنے والا خون جمتا جا رہا تھا، وہ بھی ختم ہو چکی تھی۔ طارق نے پولیس آفیسر کا پستول اٹھا کر جیب میں ڈال دیا۔ ہنا کہاں ہے؟ اب نکل چلو یہاں سے، طارق نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ ہنا گاڑی لے کر پچھلی سڑک پر پہنچ چکی ہوگی۔ میرے ساتھ آؤ، ایک چھوٹا دروازہ پچھلی دیوار میں بھی ہے، ہم اس طرف سے نکل جائیں گے، دلشیر نے کہا۔ وہ لان میں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے ہوٹل کی عمارت کی عقبی سمت میں چلنے لگے۔ پچھلی طرف ہوٹل کی لانڈری اور ملازمین کے کوارٹرز وغیرہ تھے۔ وہ ان کوارٹروں کی پچھلی طرف سے ہوتے ہوئے عقبی دیوار کے قریب آ گئے۔ یہاں ملازمین کی آمد و رفت کے لیے ایک چھوٹا گیٹ تھا۔ اس وقت دو آدمی گیٹ کے قریب کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ وہ دونوں ادھیڑ عمر تھے اور انہوں نے سردی سے بچنے کے لیے چادریں اوڑھ رکھی تھیں۔ طارق اور دلشیر ان کی طرف دیکھے بغیر گیٹ سے نکل گئے۔ گیٹ پر کھڑے ہوئے آدمیوں نے بھی ان کی طرف توجہ نہیں دی تھی۔ وہ دونوں پچھلی سڑک پر آ کر دائیں بائیں دیکھنے لگے۔ چند سیکنڈ بعد ہی دائیں طرف سے ایک گاڑی آتی ہوئی دکھائی دی۔ کار کی رفتار خاصی تیز تھی۔ وہ بریکوں کی تیز چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ ان کے قریب رک گئی۔ وہ انہی کی کار تھی۔ سٹیئرنگ کے سامنے ہنا بیٹھی ہوئی تھی۔ جلدی بیٹھو، انٹیلیجنس کے ایک آدمی کو مجھ پر شبہ ہو گیا ہے۔ وہ مجھے کار میں بیٹھتے دیکھ کر اپنی موٹر سائیکل کی طرف بھاگا تھا، ہنا نے کہا۔ وہ دونوں جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئے۔ دلشیر اگلی سیٹ پر تھا اور طارق پچھلی سیٹ پر۔ کار ایک جھٹکے سے حرکت میں آئی۔ ٹھیک اسی لمحے ایک موٹر سائیکل موڑ گھوم کر اس طرف آ نکلی۔ ہنا نے کار کا رخ لودھی روڈ کی طرف کر دیا۔ موٹر سائیکل بھی ان کے پیچھے اسی طرف گھومی تھی۔ یہ رات کا ابتدائی حصہ تھا۔ سڑک پر آمد و رفت خاصی تھی۔ ہنا کار چلانے میں بڑی مہارت کا ثبوت دے رہی تھی۔ ایک موقع پر اسے کار کی رفتار کم کرنا پڑی۔ اس دوران موٹر سائیکل قریب آ گیا۔ موٹر سائیکل سوار کے ایک ہاتھ میں پستول تھا۔ وہ پستول ہنا کی طرف اٹھاتے ہوئے چیخا، کار روک لو لڑکی، ورنہ گولی مار دوں گا۔ ہنا نے کار کی رفتار کم کر دی۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے طارق نے غیر محسوس انداز میں پستول والا ہاتھ کھڑکی سے باہر نکالا اور موٹر سائیکل سوار کے سر پر فائر کر دیا۔ دھماکے کے ساتھ ہی موٹر سائیکل سوار کی کھوپڑی کے پرخچے اڑ گئے۔ موٹر سائیکل لہراتی ہوئی سامنے سے آنے والی ایک گاڑی سے ٹکرا گئی۔ طارق چاہتا تو اسے محض زخمی کر کے اپنے تعاقب سے نجات حاصل کر سکتا تھا، لیکن اس نے ان تینوں کو دیکھ لیا تھا۔ وہ بعد میں انہیں شناخت بھی کر سکتا تھا، اس لیے اس نے موٹر سائیکل سوار کو ختم کر دینا ہی مناسب سمجھا تھا۔ ہنا نے کار کی رفتار ایک دم بڑھا دی۔ کچھ ہی دیر بعد کار پرتھوی راج روڈ پر گھوم کر شاہجہاں روڈ سے گزرتی ہوئی مولانا آزاد روڈ پر مڑ گئی۔ اس واقعے کے بعد وہ لوگ ایک بار پھر گھر میں دبک کر بیٹھ گئے۔ اگرچہ انہیں شناخت کرنے والے ختم ہو چکے تھے، لیکن احتیاط کا تقاضا یہی تھا کہ وہ چند روز روح پوش رہیں۔ تقریباً ایک ہفتہ گزر گیا۔ طارق اکثر سوچا کرتا کہ 4 سال پہلے وہ جس مشن پر یہاں آیا تھا وہ کیا تھا۔ آخر ایک روز اس نے جب اس موضوع پر شاہ رخ سے بات کی تو اس نے بتایا کہ وہ مشن تو ان کے پکڑے جانے کی وجہ سے ختم کر دیا گیا تھا۔ اس دوران جو چھوٹی موٹی کارروائیاں انہوں نے کی تھیں، ان سے لبریشن فرنٹ کو بے حد سہارا ملا تھا۔ ان کارروائیوں سے دلی کی حکومت بوکھلا گئی تھی۔ دلی پولیس تخریب کاروں کی تلاش میں شکاری کتوں کی طرح پھر رہی تھی۔ اصل مجرم تو ان کے ہاتھ نہ آ سکے، البتہ سینکڑوں بے گناہوں کو سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا گیا۔ دوسری طرف کشمیر میں بھی کشمیری مجاہدین کے خلاف کارروائیوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ ہزاروں بے گناہ کشمیری پولیس اور فوج کے ہاتھوں مارے جا رہے تھے۔ ان کے گھروں کو آگ لگائی جا رہی تھی۔ انہی دنوں یہ خبر بھی آئی کہ سری نگر کے قریب سوپور میں کشمیری مسلمانوں کی ایک بستی کو جلا کر راکھ کر دیا گیا تھا۔
भारतीय फौज ने मुसलमानों को उनके घरों में जिंदा जला दिया था। भारतीय अखबारात तो इस किस्म की खबरें शाया करने से दरेक कर रहे थे, लेकिन रेडियो पाकिस्तान और BBC से तारिक को सूरत हाल का कुछ इल्म हो रहा था। खबरें सुन सुनकर उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार एक रोज उसने वापस जाने का फैसला सुना दिया। मुमकिन है तुम्हारा फैसला दुरुस्त हो, लेकिन हम यहाँ जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपनी सरजमीन की आज़ादी के लिए ही कर रहे हैं। आज़ादी की इस जदोजहद में तुम्हारा भी उतना ही हिस्सा है जितना वादी में बेड़िया सिर्फ भारतीय फौजियों से लड़ने वाले मुजाहिदीन का है। हमारी इन कार्रवाइयों ने भारतीय हुकूमत की साख को जो नुकसान पहुंचाया है उसका तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। ये कार्रवाइयाँ दरअसल हमारे उस मिशन का हिस्सा हैं जिसका मकसद हिंदुस्तान में कश्मीरियों के हक में राय आमा को हमवार करना है। ट्रेनिंग कैंप की तबाही के बाद तुमने अंदाजा लगा लिया होगा कि अवाम ने हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ किस रद्द अमल का इजहार किया था। यही हमारी कामयाबी है। अगर हम राय आमा अपने हक में हमवार कर सकें तो ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। इससे न सिर्फ हमें अखलाकी कामयाबी हासिल होगी बल्कि हुकूमत की पॉलिसी पर किसी न किसी हद तक हमारे हक में असरअंदाज होगी। शाहरुख चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, भारत की हुकूमत यौम जमहूरिया मनाने की तैयारी कर रही है। श्रीनगर और पूरी वादी में कश्मीरी मुसलमानों ने भारतीय हुकूमत के खिलाफ मुजाहरों का प्रोग्राम बनाया है। हमें भी इस किस्म की हिदायत दी गई हैं। दिल्ली में कश्मीरी मुसलमान मुजाहरे करेंगे और हमारी टीम अपनी कार्रवाई करेगी। इस कार्रवाई में हमारे कुछ और साथी भी होंगे जिनसे तुम पहली मर्तबा मिलोगे। भारत के यौम जमहूरिया में अब सिर्फ एक हफ्ता रह गया है। उस वक्त तक अगर तुम यहाँ रुकना पसंद करो तो ठीक है, वरना मुझे तुम्हारे जाने पर कोई एतराज ना होगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तारिक ने उसके खामोश होने पर कहा। गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, शाहरुख ने कहा। कल रात मैंने डलहौजी हाउस में एक मीटिंग बुलवाई है। उस मीटिंग में वो सब लोग शरीक होंगे जो इस मिशन में हिस्सा ले रहे हैं। 2 मुजाहिदीन हाल ही में श्रीनगर से आए हैं, वो भी अपनी तजावीज़ पेश करेंगे। मैं तो कल दोपहर के बाद घर से चला जाऊंगा। दिलशेर भी सुबह ही चला जाएगा। तुम हिना को साथ लेकर आ जाना। मीटिंग का वक्त रात 10 बजे रखा गया है। ठीक है, मैं हिना के साथ पहुंच जाऊंगा, तारिक ने जवाब दिया। उस रात तारिक देर तक नहीं सो सका था। पिछले पहर उसकी आंख लगी तो सुबह देर तक सोता रहा। जब उठा तो पता चला कि हिना के सिवा घर पर कोई नहीं है। तारिक ने तैयार होकर नाश्ता किया और ड्राइंग रूम में आ गया, जहां हिना भी मौजूद थी। वो दोनों बातों में वक्त गुजारते रहे। 8 बजे रात का खाना खाकर वो कोठी से निकल गए। कोठी में कोई गाड़ी नहीं थी। कुछ दूर तक चलते रहे, फिर उन्हें एक टैक्सी मिल गई जिससे वो किनार्ड प्लेस पहुंच गए। डलहौजी हाउस में मीटिंग का वक्त 10 बजे का था। 9:30 बजे तक वो दोनों शॉपिंग सेंटर में घूमते रहे। 9:30 बजे डलहौजी हाउस में दाखिल हो गए। आज यहाँ एक मिस्री रकासा का प्रोग्राम था। लोगों की अच्छी खासी तादाद मौजूद थी। हिना और तारिक कोने की एक मेज पर बैठ गए। उनसे करीबी मेज पर एक ऐसा आदमी बैठा था जिसे देखकर तारिक चौंके बगैर नहीं रहा था। उसका चेहरा उसे जाना पहचाना सा लग रहा था, लेकिन ये याद नहीं आ रहा था कि उस शख्स को कब और कहां देखा था। वो शख्स भी उसकी तरफ देखकर खफीफ से अंदाज में मुस्कुरा दिया था। चंद मिनट बाद वो शख्स अपनी मेज से उठकर उस तरफ चला गया जहां बाथरूम्स की तरफ जाने वाला रास्ता था। 9:50 पर हिना मेज से उठ गई। वो लेडीज रूम की तरफ गई थी। उसके ठीक 5 मिनट बाद तारिक ने अपनी जगह छोड़ दी। बाथरूम्स वाली राहदारी में दाखिल होकर वो बाईं तरफ मुड़ गया और फिर मुख्तलिफ राहदारियों और खुफिया रास्तों से होता हुआ जब वो तहखाने वाले कमरे में पहुंचा तो वहां उस शख्स को देखकर वो एक बार फिर चौंक गया जिसे हाल में साथ वाली मेज पर बैठे देखा था। उस कमरे में दीवारों के साथ सोफे बिछे हुए थे जिन पर 8 आदमी और 2 औरतें बैठी हुई थी। उनमें से एक तो हिना थी और दूसरी तारिक के लिए अजनबी थी। उसकी उम्र 30 और 35 के दरमियान रही होगी। खासी हसीन थी वो भी। मर्दों में गुलाब दीन भी शामिल था। उसकी यहाँ मौजूदगी साबित कर रही थी कि शाहरुख से उसका मुस्तकिल राब्ता रहा था। ठीक 10 बजे एक और आदमी कमरे में दाखिल हुआ। उसे देखकर सब लोग उठकर खड़े हो गए। उस शख्स ने सबसे बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया और एक सोफे पर बैठ गया। उसके कुछ देर बाद शाहरुख कमरे में दाखिल हुआ। उसने सबका एक दूसरे से तारुफ कराया। तब तारिक को पता चला कि हाल में दूसरी मेज पर बैठे हुए जिस शख्स का चेहरा उसे जाना पहचाना लगा था वो लिबरेशन फ्रंट का एक मुजाहिद था और सिर्फ एक दिन पहले फ्रंट की तरफ से कुछ तजावीज़ लेकर श्रीनगर से आया था। उसका नाम मुबारक अली था। अब तारिक को सब कुछ याद आ गया था कि उसे कब और कहां देखा था। तारिक ने कई साल पहले जिस कैंप में ट्रेनिंग हासिल की थी मुबारक अली उस कैंप का इंचार्ज था और वो शख्स जिसे देखकर सब लोग खड़े हो गए थे उसका ताल्लुक भी फ्रंट से था और वो भी एक रोज पहले ही श्रीनगर से आया था। तारुफ के बाद बाकायदा मीटिंग शुरू हो गई और सब लोग भारत का यौम जमहूरिया शायाना शान तरीके से मनाने के लिए तजावीज़ पेश करने लगे।
25 और 26 जनवरी की दरमियानी शब 11 बजे तारिक मंदिर मार्ग पर लक्ष्मी नारायण मंदिर से चंद गज दूर एक मकान में दाखिल हो रहा था। ये नीलम नामी उस खूबसूरत औरत का मकान था जो उस रात मीटिंग में शरीक थी। उस रात मीटिंग में ये तय कर लिया गया था कि किसको किसके साथ मिलकर क्या काम करना है। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक तारिक को आज की रात नीलम के साथ गुजारनी थी और सुबह से नीलम के साथ अपनी कार्रवाई मुकम्मल करनी थी। प्रोग्राम के मुताबिक तारिक को रात 12 बजे के बाद नीलम के मकान पर पहुंचना था, लेकिन वो 1 घंटा पहले ही आ गया था। दस्तक के जवाब में दरवाजा एक 9 उम्र लड़की ने खोला था। लिबास और हुलिया से वो कोई मुलाजिमा ही लगती थी। दरवाजा खुलते ही तारिक अंदर आ गया। लड़की ने उसे रोकने या उससे कुछ पूछने की कोशिश नहीं की थी, या फिर तारिक ने उसे मौका ही नहीं दिया था। नीलम कहाँ है? तारिक ने सवालिया निगाहों से लड़की की तरफ देखा। लड़की ने एक कमरे की तरफ इशारा कर दिया। तारिक आगे बढ़ गया। कमरे का दरवाजा बिड़ा हुआ था। उसने धक्का देकर दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया, लेकिन दूसरे लम्हे इस तरह रुक गया जैसे जमीन ने उसके पैर पकड़ लिया हो। दरवाजे के बिल्कुल सामने पलंग पर एक मर्द और एक लड़की एक दूसरे से लिपटे हुए थे। दरवाजे की आवाज सुनकर वो दोनों उछल पड़े। तारिक को देखकर लड़की के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। उसने मर्द को धक्का देकर एक तरफ हटाया और खुद को छुपाने के लिए बिस्तर की चादर खींचकर जिस्म पर लपेटने लगी। उसकी आंखों में शर्मो हया नाम की तो कोई चीज नहीं थी, लेकिन चेहरे पर खौफ के तासुरात उभर आए थे। ये मंजर देखकर तारिक का चेहरा सुर्ख हो गया। वो घूमकर तेजी से कमरे से बाहर आ गया। वो कमसिन लड़की अब भी ड्योड़ी में खड़ी थी। मैंने पूछा था नीलम कहाँ है? इस मर्तबा तारिक ने कदरे सख्त लहजे में लड़की से दरियाफ्त किया और लड़की ने इस मर्तबा ऊपर की तरफ उंगली उठा दी। तारिक ने घूर कर लड़की की तरफ देखा और तेज तेज कदम उठाता हुआ जीने की तरफ बढ़ गया। सीढ़ियों के इख्तिताम पर एक मुख्तसर सा लाउंज था और उससे आगे 2 कमरे थे। एक कमरे का दरवाजा खुला हुआ था मगर अंदर तारिकी थी। दूसरे कमरे में रोशनी थी मगर दरवाजा बंद था। तारिक ने पैर की ठोकर से दरवाजा खोल दिया। ये कमरा बहुत शानदार तरीके से आरास्ता था। कीमती सोफे, खूबसूरत दबीज कालीन, कमरे की हर चीज खूबसूरत और कीमती थी। दाएं तरफ वाले सोफे पर एक मर्द और एक औरत बैठे थे। आदमी हिंदू लगता था। उम्र 50 से कुछ ऊपर ही रही होगी। उसने धोती कुर्ता और स्याह कोट पहन रखा था। क्लीन शेव और सर के बाल सफेद थे। वो नीम मदहोश था। उसने गरचे सोफे की पुश्त से टेक लगा रखी थी, लेकिन उसका सर औरत के कंधे पर झुका हुआ था और वो औरत नीलम थी। उसके जिस्म से साड़ी का पल्लू हटा हुआ था। एक हाथ में शराब का गिलास था जिसे वो मर्द के होंठों की तरफ ले जा रही थी, लेकिन दरवाजे पर पैर की ठोकर पड़ने से वो इस तरह उछली कि उसके हाथ में पकड़ा हुआ गिलास उसके साथी मर्द पर गिर गया। शराब ने उसका कुर्ता और कोट तर कर दिया। वो भी एक झटके से सीधा हो गया। ये कौन बदतमीज है? वो आंखें मलते हुए हकलाया। लाला जी, ये। नीलम ने झुक कर उसके कान में सरगोशी की। नीलम ने बूढ़े हिंदू के कान में न जाने क्या कहा था कि वो एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। इस सरगोशी से उसका सारा नशा भी हिरन हो गया था। उसने दरवाजे के करीब पड़े हुए अपने जूते पहनने की कोशिश की मगर पैर उल्टे सीधे पड़ रहे थे। आखिरकार उसने झुककर जूते हाथों में उठा लिए और पीछे मुड़कर देखे बगैर बाहर भाग गया। तारिक दरवाजे के करीब खड़ा खूंखार निगाहों से नीलम की तरफ देख रहा था। नीलम अपनी जगह से उठकर साड़ी दुरुस्त करने लगी। मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हारा किरदार इतना मकरूह और घिनौना है। तारिक सुलगती हुई नजरों से उसकी तरफ देखते हुए बोला, कल रात की मीटिंग में तुम दुख्तराने कश्मीर की इज्जत और नामूस की कस्में खाकर हिंदू बेड़ियों से खौफनाक इंतकाम की बातें कर रही थी, लेकिन इस वक्त तुम्हारा ये रूप देखकर घिन आ रही है मुझे, और शायद यही तुम्हारा असल रूप है। बाज़ औक़ात आंखों देखा भी काबिल यकीन नहीं होता, नीलम ने मदम लहजे में कहा। उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। जरूरी नहीं कि हकीकत वही हो जो तुमने देखी हो। मेरी नजरों को जुटलाना चाहती हो? तारिक ने उसे घूरा। अगर ये सब कुछ फरेब नजर था तो फिर हकीकत क्या है? हकीकत वही है जो तुम्हारे दिल में है। नीलम ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए जवाब दिया। मैं कश्मीर की बेटी हूँ और कश्मीर की कोई बेटी अपनी जान तो दे सकती है, किसी को अपनी इज्जत से इस तरह खेलने की इजाजत नहीं दे सकती। आज वादी में मेरी सैकड़ों बहनों और बेटियों को रुस्वा किया जा रहा है। मैं उनके बारे में सुनती हूँ तो मेरा खून खोलने लगता है। मैं उनका इंतकाम ले रही हूँ। ये दुकानदारी में हसूल ज़र, अय्याशी या जिनसी तस्कीन के लिए नहीं कर रही। ये तो वो जाल है जो मैं इन खूंखार बेड़ियों को फंसाने के लिए फैलाए बैठी हूँ। लोगों को मेरा दामन दागदार नजर आता है, मगर मैं जानती हूँ कि मेरा दामन बिल्कुल साफ और बेदाग है। मैं ये सब कुछ अपने वतन की आज़ादी के लिए कर रही हूँ। मैंने आज तक किसी को मुकर्रर हद से आगे नहीं बढ़ने दिया। तुमने जो कुछ देखा वो हकीकत में वो नहीं था जो तुम समझ रहे हो, लेकिन नीचे एक कमरे में मैंने जो कुछ देखा है वो क्या है? तारिक बोला। हाँ, वो हकीकत है, नीलम ने जवाब दिया।
لیکن تمہیں شاید علم نہیں کہ وہ ہندو لڑکی ہے اور اس کا چاہنے والا بھی ہندو ہے۔ میں انہی کے جوتے انہی کے سر پر مار رہی ہوں، انہی کی بیٹی اور بہنوں کو انہی کے سامنے ننگا کر رہی ہوں۔ یہ بیڑی نما انسان بڑی خوشی سے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی عزت سے کھیلتے ہیں، اور مجھے وہ سب کچھ مل جاتا ہے جو میں چاہتی ہوں، جس کے لیے میں نے یہ دکانداری سجا رکھی ہے۔ میں سمجھا نہیں۔ طارق کی آنکھوں میں الجھن تیر گئی۔ یہ کوٹھا عام تماش بینوں کے لیے نہیں ہے، نیلم نے جواب دیا۔ یہاں آنے والوں کا تعلق یا تو حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں سے ہوتا ہے یا ایسی شخصیات سے جن سے ہم اپنے مطلب کی کوئی بات معلوم کر سکیں یا اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ بڈھا جو ابھی یہاں سے بھاگا ہے، جانتے ہو کون ہے؟ میں کیا بتا سکتا ہوں، طارق نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ لالا پریم ناتھ ہے، کشمیری ہندو، نیلم نے جواب دیا۔ اس کی زندگی کا بیشتر حصہ کشمیر میں گزرا ہے۔ آج کل حکومت کے اس شعبے سے وابستہ ہے جسے امور کشمیر کا نام دیا جاتا ہے۔ لالا پریم ناتھ اس شعبے میں کلیدی عہدے پر فائز ہے۔ اس کے توسط سے کچھ کارآمد باتیں معلوم ہو چکی ہیں اور کچھ کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن تم نے اس کے کان میں کیا کہا تھا کہ وہ اس طرح بدحواس ہو کر بھاگ نکلا؟ طارق نے کہا، میں نے اسے بتایا تھا کہ تم ایک منسٹر کے پرائیویٹ سیکرٹری ہو اور کچھ دیر بعد وہ منسٹر بھی یہاں آنے والا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ اس قدر بدحواس ہوا کہ اسے جوتے ہاتھ میں اٹھا کر بھاگنا پڑا۔ نیلم نے یہ کہتے ہوئے ہلکا سا کہکا لگایا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولی، اور نیچے تم نے جس شخص کو دیکھا تھا وہ بھی حکومت کے ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہے، لیکن اب وہ بھی بھاگ گیا ہوگا۔